Good morning, students. Today I am going to teach class 7 and the chapter name is comparing quantities, and the topic I taken ratio. So today I deal the topic ratio and the related question to it. First we have to know the definition of the ratio. The definition is the ratio of two quantities. These two quantities of same kind and in the same unit. Means ratio must be in same unit. Is the fraction that is the one quantity is of the other. Just it is written as A is to, actually A, this is the sign of ratio. This is the sign of ratio. See here, this is the sign of ratio, double dot, means A ratio B. Means this is the sign of ratio, and it is also read as A is to, means this sign is read as is to, means A is to B, means this is the first part and this is the second part. It is also written as A by B, means this fraction, actually this ratio sign is this convert into this, means by, is divided. That is, it is read as A is to B, in which the first term is called antecedent and the second term is called consequent. For example, just write, I written here 3 is to 4. You can take any either 4 is to 5, 7 is to 9, anything. Now the property of ratio. Property is, if we just take again A is to B, it is written as A by B. The property is, if we multiply or divide. First I tell the if I multiply or if we multiply the same number to both antecedent and consequent, means if I written in fraction form, means numerator or denominator, the same number I taken here m, means this remains the same, means there is no change, because if you want you just cut them. दूसरा एक और सेम चीज, अगर ये सेम चीज है दैट इज a by b, अगर दोनों में सेम चीज एक्चुअली हम लोग डिवाइड कर दे, then also this is the same number, means ratio does not change. means सीधा सीधा इसका प्रॉपर्टी यही हुआ कि अगर हम लोग कोई भी रेशियो में या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें, रेशियो हमेशा सेम रहेगा. अब कुछ क्वेश्चन है जो हम इससे रिलेटेड एग्जांपल लेके डील करना चाहेंगे. जैसे कन्वर्ट इन रेशियो. फॉर एग्जांपल 30 मीटर to 300 centimeter. Just convert them. First you have to, actually I tell already that unit must be same, means here meter and here centimeter. So either you have to convert 300 centimeter into meter or 30 meter into centimeter. So it is easy to convert the larger unit into smaller unit. So since 1 meter equal to 100 centimeter, therefore 30 meter equal to 30 into 100, means 3000 centimeter. Now write again, we write this 3000 centimeter in place of 300 meter to 300 centimeter. So for ratio you have to write in fraction first, 3000 by 30 is 300. This is double zero and then 10, means 10 by 1. So the ratio is 10 is to 1. मीन्स अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, अगर बोलता है अगर डिफरेंट यूनिट होगा तो फर्स्ट हम लोग को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग जस्ट उसको पुट करके और सॉल्व करेंगे तो जो भी सिंपलेस्ट, मतलब ये चीज ध्यान रखना है कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है.
जैसे कुछ और हम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड एक दो डील करना चाहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम डील करते हैं। क्वेश्चन इज जैसे कुछ और क्वेश्चन जैसे इस टाइप, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट। जैसे यहाँ पे कोई रेशियो है इस टाइप का फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब कभी फ्रैक्शन में नहीं है। जैसे यहाँ पे सीधा सीधा अगर रेशियो बोलना चाहिए इस टाइप का रेशियो, तो फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए। तो कभी भी इस टाइप का फ्रैक्शन वाला अगर रेशियो है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बोलता है कन्वर्ट करने, तो बहुत इजी तरीका है। जो भी डिनोमिनेटर है उसका हम लोग को एलसीएम ले लेना, मीन्स एलसीएम ऑफ 4 and 6 अगर हम लोग लेंगे तो 12 होगा। लेके देखना, देख लो 4 6, 2 से 2 2 4, 2 3 6, मीन्स 2 3 3 2 6, 2 12। अब जो दोनों है उसमें बारी बारी से जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज 4 3 12 और 6 2 12, मीन्स दिस इज 3 एंड दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इजी है। कभी भी कोई फ्रैक्शन अगर दिया, मतलब रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हमेशा उसको हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशियो में, मतलब दोनों फ्रैक्शन जो सेपरेट है, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को जो मिलेगा वही क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे डिवाइड 840 बिटवीन अमित एंड सुमित। फर्स्ट आई रब इट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है रुपीज 840, इसको डिवाइड कर देना है अमित एंड सुमित में। लेकिन कुछ कंडीशन है कि दोनों का कंडीशन क्या है कि इसको 5:7 के रेशियो में देना है। 5:7 के मतलब अगर अमित को 5 पार्ट, मतलब ये अमित को एक्चुअली फर्स्ट मीन्स अमित के लिए 5 पार्ट है और सुमित को 7 पार्ट, मतलब इसको ऐसा इसको मतलब डिवाइड करना 840 को रुपीज को कि अमित को 5 पोर्शन मिले, मतलब जो भी इस रुपीज का 5 पार्ट होगा एंड 7 पार्ट सुमित को मिलना चाहिए। तो बहुत इजी तरीका है। पहले इस रेशियो का जो 5:7 इसको हम लोग टोटल पहले टोटल लेंगे। एक्चुअली दोनों जो रेशियो इसका टोटल कितना होगा, तो पहले इसको हम लोग ऐड कर दिए। 7 + 5 दिस इज 12। नाउ मतलब ये टोटल हो गया। अब हम लोग अमित के लिए निकालेंगे। अमित को इसका मतलब जो 12 टोटल था उसमें से अमित को 5 पार्ट देना है, और वही अगर हम सुमित का बात करें तो 12 में से इसको 7 पार्ट देना है, और जो टोटल मतलब 12 में से 5 पार्ट वो भी किसका, 840 का। उसी तरह सुमित को 12 में से 7 पार्ट देना है किसका, 840 का। तो इसको 12 से काटेंगे, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 7 5 जा 35, मतलब 350 रुपीज, 7 7 जा 49, दिस इज 490 रुपीज। मीन्स अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि 840 को अमित और सुमित में 5:7 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग 350 रुपीज अमित को मिलेगा एंड 490 रुपीज सुमित को मिलेगा। दैट्स ऑल।